my name is Sharyar. So first we'll begin with INL. The first company we'll talk about is International Industries Limited. So basically International Industries Limited is Pakistan's biggest manufacturing industry of steel pipes, polymer pipes, and they have annual capacity of 8,17,000 tons. INIL has operations based in Canada, uh, Australia, Sri Lanka, and they are Pakistan's biggest exporters of steel pipes and polymer pipes. Basically, this stock, why I pitched the stock is because it's trading at almost its all-time low, the same level we saw in back in COVID-19. Today, last week, this stock was trading at around 68 rupees. In 1 week, we can see it gained almost 9 to 10%. Today, it closed at around 74.5 rupees. And if you look at the technicals of the stock, it's gaining a bullish momentum since last week and it's still continuing its upward trends. But again, we have to look at the KSE 100 index. If we see a downtrend in the index of KSE 100, then of course we can expect some profit taking in INIL. But overall outlook of the stock is really good. If you see it exports to 60 plus countries. Until now, it has exported around 1 million tons of steel pipes. It has achieved a lot of achievements regarding CSR, Annual Environment Excellence Awards. It also got a Best Export Trophy for engineering products. Its all-time high was around 404 rupees, and right now it's at 74 rupees. So you can see there's a massive drop in price. Its all-time high price was in 2017, around 404 rupees. Then after that, a lot of fundamental factors attributed towards the company's downfall. But again, the outlook is positive for the company, and we can expect it to go above 80 to 90 in the coming week. It gives regular dividends from the past 5 to 6 years. We can see it gave dividend twice every year. One time it gave dividend of around 6 rupees per share, and also it gives around 2.5 rupees per share dividends. So if you look at it if you want to invest in the stock for dividends, I can say it can give you good dividends along with good capital gain as well. Thank you. इस वीक हमने पाकिस्तान स्टेट ऑयल को भी हाईलाइट किया है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ओएमसी सेक्टर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी शुमार की जाती है। पीएसओ को हाईलाइट करने का मकसद फ़िलहाल उसके डिस्काउंटेड रेट पर होना है। हमने देखा है कि पिछला क्वार्टर पीएसओ का अच्छा नहीं आया था, जिसमें तकरीबन 12 अरब रुपए की फाइनेंशियल कॉस्ट थी, जिसकी वजह से पीएसओ को लॉस रिपोर्ट करना पड़ गया था। बट इस करंट क्वार्टर में हमने देखा है कि 2 मरतबा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, जिसकी वजह से हम ये इम्कान ज़ाहिर कर सकते हैं कि इन्वेंट्री गेंस की वजह से पीएसओ का रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है। यही वजह है कि फ़िलहाल ये डिस्काउंटेड रेट पर मौजूद है। जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो पीएसओ के स्टॉक में हमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आया। तकरीबन 142 से स्टॉक गिरकर 109 रुपये तक ट्रेड होने लग गया, और अब दोबारा अच्छे रिज़ल्ट की एंटिसिपेशन में पीएसओ में एक रैली देखी जा रही है। यही वजह है कि हमने इस स्टॉक को हाईलाइट किया है। इस हफ्ते हमने जिस दूसरे स्टॉक को हाईलाइट किया है वो है एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल। फ़िलहाल कुछ परेशानियां हैं उस स्टॉक के हवाले से जो कि बताना अहम है। पहली परेशानी उस स्टॉक के साथ ये है कि इंटरनेशनली डिमांड कम है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इतना जो ग्लोबल स्लो डाउन आया है उसकी वजह से पीवीसी की प्राइसेस उतनी नहीं हैं। इसी तरह जो पीवीसी इथिलीन के मार्जिन्स हैं वो भी गिरे हैं। बीच में जब पेट्रोलियम प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आई थी तो थोड़ा सा एक रिस्पाइट ज़रूर मिला था, बट अब दोबारा से जैसे ही पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और $80 पर बैरल के हिसाब से अब उसकी एक एवरेज बनती हुई नज़र आ रही है। ना सिर्फ ये, फेड चेयर की जानिब से ये रिसेंट एक स्टेटमेंट आया है कि वो मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, ना सिर्फ बढ़ाएंगे बल्कि उसको तेज़ तरीन बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से एक और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर फेड मज़ीद अगर अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो एक ग्लोबल मज़ीद एक रिसेशन आने के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से डिमांड और कम हो सकती है। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उसकी वजह से भी ईपीसीएल जैसी कंपनियों को मसाइल का सामना है। सो ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि फ़िलहाल ईपीसीएल जैसे स्टॉक में थोड़ी सी एक्साइटमेंट कम रहेगी, और जब तक जो ग्लोबल टर्न अराउंड नहीं आता डिमांड के साइड पे, सो फ़िलहाल ईपीसीएल के हवाले से थोड़ा सा मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। हमने एक और स्टॉक इस वीक हाईलाइट किया था, एबर्ट लेबॉर्ट्रीज़। एबर्ट पाकिस्तान की एक मायनाज लेबॉर्ट्री कंपनी है जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है एबर्ट लेबॉर्ट्रीज़, जो कि यूएसए में बेस करती है।
इसको हाईलाइट करने का मकसद ये है कि रिसेंटली हमने देखा था कि पूरा जो फार्मा सेक्टर है वो काफ़ी अंडर ड्यूरेस रहा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे और दवासाज कंपनियों को अपनी जो प्राइजेज़ हैं बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। रिसेंटली ड्रैप की जानिब से प्राइजेज़ बढ़ाने की उनको इजाज़त दी गई है, जो कि फ़िलहाल हमने देखा था कि एक शॉर्टेज नज़र आ रही थी पूरी मार्केट में। अब दोबारा मेडिसिन्स की जो सप्लाई है वो स्टार्ट हो चुकी है। इंटरेस्ट रेट ज़रूर बढ़े हैं, बट हमने देखा है कि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। तो हाईलाइट करने का मकसद ये है कि अब जब प्राइसेस बढ़ी हैं तो कंपनीज़ के लिए थोड़ा-सा बेहतर हो गया है अपने मार्जिन्स को मेंटेन करना, और आगे जाके हम देख सकते हैं कि स्टॉक में एक अच्छी रैली बन सकती है।